السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کی واپسی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایئر انڈیا کی ایک پرواز آج یعنی ہفتے کی صبح ممبئی سے رومانیہ کے شہر بخارسٹ کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ اس میں 470 طلبہ کو ہندوستان واپس لایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک فلائٹ ہنگری سے دہلی آئے گی۔ اس وقت ایئر انڈیا کی 2 پروازوں کو رومانیہ سے دہلی پہنچنا ہے۔ ایئر انڈیا کی ایک پرواز شام 4 بجے بخارسٹ رومانیہ سے براہ راست ممبئی پہنچے گی۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کا استقبال کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کے خلاف ایک قرارداد لائی گئی۔ تمام ممالک کو اس پر ووٹ دینا تھا، تاہم ہندوستان نے خود کو اس ووٹنگ سے دور رکھا ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ تمام رکن ممالک کو اختلافات اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ بات چیت ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے، تاہم اس وقت یہ مشکل لگ سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سفارتکاری کا راستہ چھوڑ دیا گیا، ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے ٹی ایس تیرومورتی نے کہا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہندوستان نے اس تجویز سے باز رہنے کا انتخاب کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے آج ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11,499 کیسز ملک بھر میں درج ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 1,21,881 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,598 افراد نے کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,22,70,482 ہو گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں صحت یابی کی شرح قریب 99% ہے۔ یوکرین میں ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے عہدیداروں کے ساتھ پیشگی رابطے کے بغیر سرحدی چوکیوں پر نہ جائے۔ یوکرین میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک اور ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ روس سابق سوویت جمہوریہ پر ہمہ گیر حملے کر رہا ہے اور ہزاروں ہندوستانی اس حملے میں پھنسے ہوئے ہیں اور شدت سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا سرحد پر نہیں جانا چاہیے۔ تعینات ہندوستانی افسران کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر سرحد کی طرف نہ جائیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے مغربی شہروں میں بغیر ہم آہنگی کے سرحد پر پہنچ کر مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے کھانے پینے کے ساتھ وہاں رہنا بہتر ہے جہاں پر آپ مقیم ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب تنازع سے متعلق درخواستوں کی سماعت مکمل کر لی ہے اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس ریتو راج اوستھی نے کہا کہ ہم نے فریقین کو سماعت کر لیا اور فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں سے کہا کہ اگر مزید کوئی بات کہنا ہے تو وہ بینچ کے روبرو تحریری طور پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ 9 فروری کو حجاب معاملے کی سماعت کے لیے جو بینچ تشکیل دی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس کرشنا ایس ڈکشت اور جسٹس جے ایم قاضی شامل تھے، روزانہ کی بنیاد پر بینچ نے فریقین کے دلائل سماعت کیے۔ چند لڑکیوں کی جانب سے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر اعتراض کے خلاف یہ درخواست داخل کی گئی تھی، جہاں یونیفارم تجویز کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک کو، جنہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 2 دن پہلے منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں گرفتار کیا تھا، پیٹ میں درد کی شکایت پر سرکاری جے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ عدالت نے این سی پی کے سینئر لیڈر کو 3 ماہ تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ نواب ملک جمعے کو پیٹ میں درد کی شکایت کی، جس پر انہیں جے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پیشاب میں تکلیف ہونے کی وجہ سے یورولوجی ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا ہے۔ نواب ملک مہاراشٹر میں اقلیتی امور کے وزیر کے علاوہ این سی پی کے ترجمان بھی ہیں۔ ای ڈی نے ان پر انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے ساتھیوں سے روابط رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ملک میں جاری مذہبی شدت پسندی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنے کے خطرناک کھیل کی مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مذہبی شدت پسندی کا یہ جنون ملک کو تباہ کر دے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکول اور کالج کھولے جائیں۔ یہ بات انہوں نے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس اجلاس میں مولانا ارشد مدنی نے دستور اساسی کی دفعہ 44 کے تحت نئی میعاد کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ وشوا ہندو پریشد نے جمعیت علماء ہند پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ وی ایچ پی نے الزام عائد کیا کہ جمعیت علماء ہند نے دہشت گردوں کے موقف کی تائید کر رہی ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ جمعیت کے صدر ارشد مدنی نے احمد آباد دھماکوں میں مجرم قرار دیے گئے افراد کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وی ایچ پی کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم دہشت گردوں کو قانونی مدد فراہم کر رہی ہے۔ وی ایچ پی کے ترجمان ونود بنسال نے کہا کہ احمد آباد دھماکوں پر عدالت کے فیصلہ تاریخی ہے، جس میں عدالت نے 38 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جبکہ 11 دیگر کو سزائے عمر قید سنائی ہے، جبکہ 8 دہشت گرد ہنوز مفرور ہیں۔ وی ایچ پی کے ترجمان نے بغیر کسی چشمدید گواہ کے دہشت گردوں کے سارے نیٹ ورک کو ختم کرنے پر پولیس کی ستائش کی۔ ان دہشت گردوں کا تعلق اتر پردیش کے اعظم گڑھ سے ہے۔ بنسال نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم بلکہ جج کو بھی موت کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ جمعیت علماء اس طرح کے عناصر کی مدد کر رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنظیم انتشار پسند سرگرمیوں اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ملوث ہے۔ اس طرح کی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔
मुस्लिम राष्ट्र मंच ने भी जमीयत उलमा के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। मंच ने कहा है कि यह अदालत का फैसला न कि किसी सियासी जमात का फैसला है। वीएचपी और मुस्लिम राष्ट्र मंच ने तब सवाल नहीं उठाए जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया था, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा हैं। इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बिहार के एक बीजेपी रुकन असेंबली हरीश भूषण ठाकुर ने एक बार फिर कहा है कि मुसलमानों को वोट देने के हक से महरूम कर देना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी के रियासती यूनिट को इन्हें विजयनुमाई नोटिस जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। नोटिस में हरिभूषण ठाकुर से कहा गया है कि वो अपनी बात की वजाहत करें। वज़ीर के हरिभूषण ठाकुर ने गुज़िश्ता रोज यह कहते हुए एक तनाज़ा छेड़ दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से वोट देने का हक छीन लिया जाना चाहिए। आज एक बार फिर उन्होंने अपनी इस बात का इरादा करते हुए कहा कि मुसलमानों से वोट देने का हक वापस लेने की ज़रूरत है। इसी दौरान बिहार में बीजेपी की हलीफ जनता दलियों ने हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी तर्जुमान नीरज कुमार ने हरिभूषण ठाकुर के इस बयान को इश्तियाल-अंगेज करार दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा तसलसल है। यूक्रेन में अभी सुबह है, लेकिन सुबह उठते ही वहां के लोगों में खौफ व हरास फैल गई है। इस वक्त शदीद फायरिंग हो रही है। कीव के आसमान पर लड़ाका तैयारे के गरज सुनाई दे रहे हैं। अभी सूरज की रोशनी वहां नहीं आई है। सड़कों पर खामोशी है, लेकिन गोलियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं। कुछ लोग अपने घर बार छोड़ चुके हैं और मौका मिलते ही महफूज मुकामात पर जा रहे हैं। रूस के लिए यूक्रेन पर हमला करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसे में बल्गारिया ने भी रूसी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी है। ताहम इससे कबल अमेरिका रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा समेत मुतअद्दिद अफराद के असासे मुंजमद करने का फैसला भी कर चुका है। रूस यूक्रेन जंग में दावे और जवाबी दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि 3 रोज़ा जंग में इनके 137 हीरोज अपनी जानें गंवा चुके हैं। इनमें से 10 फौजी अफसरान हैं। यूक्रेन की फौज का दावा है कि उन्होंने 1000 से ज़ायद रूसी फौजियों को हलाक किया है। साथ ही रूसी वज़ारत दिफा का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन में 211 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया है। यहाँ यूक्रेन का दावा है कि इसने कम से कम 80 रूसी टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 7 हेलीकॉप्टर, 10 हवाई जहाज़ और 20 क्रूज मिसाइल तबाह किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और फौज को वापस बुलाने की करारदाद पर वोट दिया है। इस दौरान रूस ने इस तजवीज़ को वीटो कर दिया है। रूस भी सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमले की मजम्मत में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 11 रुकन ममालिक ने यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद की हिमायत में वोट दिया। साथ ही रूस ने इस तजवीज़ के खिलाफ वेटो का इस्तेमाल किया। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से रूस पर पाबंदियों के बाद अब अमेरिका भी एक्शन मूड में आ गया है। इसलिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा लाव्रोव और आर्मी चीफ की जायदादें मुंजमद कर दी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले का खामियाजा रूस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूस के इस बेजा हमले की वजह से यूक्रेन के अवाम को बहरान का सामना है। ये रूसी हुकूमत को संगीन इक़्तिसादी और सिफारती कीमत अदा करेगा। अब यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में अमेरिका भी भरपूर अंदाज में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फिजाइया के 3 तैयारे रोमानिया की फिजाई हुदूद में परवास करते हुए देखे गए हैं। ये तैयारे 3 घंटे से ज़्यादा अरसे से परवास कर रहे हैं। इसके पास पोलैंड की फिजाई हुदूद में एक तैयारा ईंधन भर रहा है। शुबा किया जा रहा है कि क्या रूस अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी फिजाइया के तैयारे हमले के दौरान यूक्रेन की सरहद पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। मक्के में हरम शरीफ में माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। इदारे उमूर हरमैन की जानिब से हरम मक्की के तौसी हिस्से का जायजा लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक रमज़ान मुबारक में मुमलिकत और बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्के मुकर्रमा आती है, जिनकी सहूलत के लिए इदारे उमूर हरमैन की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं। हरम मक्की में तौसी मंसूबे की कमेटी ने रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया, ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि हरम शरीफ में रमज़ान मुबारक के दौरान आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने से मुतालिक सरगर्मियों के आगाज़ के बाद काबीना में तब्दीली और राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए TRS में ज़बरदस्त सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है। रियासती काबीना में एक नशिस्त तवील अरसे से मखलूआ है। गुज़िश्ता मई में एटला राजेंद्र की बरतरफगी के बाद से इस नशिस्त पर कई अरकान असेंबली व कौंसिल की नज़रें हैं और हर कोई अपने तबक़ात की नुमाइंदगी कम होने की शिकायत करते हुए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में MLC इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रुकन राज्यसभा बंडा प्रकाश ने इस्तीफ़ा दिया था और राज्यसभा की ये नशिस्त खाली है, जबकि जून में 2 अरकान D श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत राव की मियाद ख़त्म हो रही है। वज़ीर के D श्रीनिवास तवील अरसे से TRS की सरगर्मियों से दूर हो चुके हैं, जबकि उन्होंने मियाद की तकमील के साथ ही कांग्रेस में वापसी का मन बना लिया है।
बंडा श्रीनिवास के इस्तीफे के बाद इस नशिस्त के लिए मजीद 2 साल की मुद्दत बाकी है और अप्रैल 2024 में मियाद खत्म होगी। बताया जा रहा है कि हुजूराबाद असेंबली नतीजे के बाद से चीफ मिनिस्टर काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये काम मुलतवी हो रहा है। बासुक राय के मुताबिक कौमी सियासत में हिस्सेदारी से मुतालिक मसरूफियत के बाकायदा आगाज से कबल चीफ मिनिस्टर काबीना में तब्दीली करेंगे। एक नशिस्त के लिए जो अहम दावेदार हैं, इनमें MLC के कविता, कडियम श्रीहरि और दीगर कायदीन शामिल हैं। जिन तबकात को काबीना में नुमाइंदगी नहीं है, इनके कायदीन सरगर्म हो चुके हैं। राज्यसभा की 3 नशिस्तों में एक नशिस्त बताया जाता है कि फिल्म स्टार प्रकाश राज के लिए मख्तस की जाएगी, जो कौमी सतह पर मुख्तलिफ जमातों की तायीद के हुसूल में KCR की मदद कर रहे हैं। राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर की पेशकश पर प्रकाश राज ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। गैर मिजाज लेआउट्स के प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। रियासती हुकूमत ने लेआउट के बगैर प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए 2020 में अहकाम जारी किए थे। महकमा रजिस्ट्रेशन के अहकाम को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में 5000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के अदकाल पर आजलाना समाअत करते हुए अहम फैसला सुनाया। गैर मंजूरा लेआउट्स प्लॉट्स को शराइत के साथ रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी गई। महकमा रजिस्ट्रेशन के जानिब से जारी करदा मेमो से किसी ताल्लुक़ के बगैर प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करने हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि खरीदारों को शराइत के बारे में पहले से वाकिफ कराना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना ने यूकेरियन में मुश्किलात से 2-4 रियासत के तलबा के मुकम्मल सफरी अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश की है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि तलबा को घर वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारे का इंतज़ाम करें। उन्होंने यूकेरियन में फंसे रियासत के तलबा की मुश्किलात पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि खुसूसी तैयारे का इंतज़ाम करें। तेलंगाना हुकूमत इन तलबा के लिए मुकम्मल सफरी मसारिफ बर्दाश्त करने तैयार हैं, ताकि हम जल्द अज जल्द इनको महफूज तौर पर मुल्क वापस ला सकें। क़ब्ल यूक्रेन में फंसे 20 तलबा में से एक तालिब इल्म के रिश्तेदार के ट्वीट पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए रियासती वज़ीर ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने से दरख्वास्त की कि इन तक पहुँचे। रघुवेंद्रा ने KTR को ट्वीट करते हुए कहा था कि तेलंगाना के 20 तलबा बशमुल इनका भाई वेनिटिसिया में मदद का मुंतज़िर है। उन्होंने लिखा कि तलबा काफ़ी खौफज़दा और बेयार और मददगार हैं। उन्होंने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि तलबा का मौजूदा मुकाम मदद से काफ़ी दूर है। तेलंगाना हुकूमत ने नई दिल्ली के तेलंगाना भवन और हैदराबाद के रियासती सेक्रेटरीट में हेल्पलाइंस कायम की है, ताकि यूक्रेन में फंसे तलबा और रियासत के शहरियों की मदद की जा सके। उप्पल पुलिस ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ के जरिए जिंदा खातून को मुर्दा करार देते हुए अराजी पर कब्जा करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन ने दीगर 9 मुलजिमीन के साथ मिलकर रामनतापुर सर्वे नंबर 7475 श्री रामनतापुर के प्लाट नंबर 274 मवादी 267 मुरब्बा गज अराजी के दस्तावेजात में छेड़छाड़ की थी। उन्होंने हकीकी मालिका 71 साला वरालक्ष्मी कुमारी की मौत का झूठा सर्टिफिकेट पेश किया था, जो जिंदा है। मुलजिमीन की शिनाख्त 33 साला पी ज्योति, 19 साला विनीला और 27 साला बी ज्योति के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि इन प्लाट्स की हकीकी मालिका वरालक्ष्मी ने ये प्लाट श्री राम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से खरीदे थे, जिसके बाद उन्होंने कंपाउंड वॉल की तामीर करवाई थी। यह खातून RK पुरम कुत्तापेट में मुकीम है, जो अक्सर अपने प्लाट्स को देखने आया करती थी। मुलजिम नंबर 1 ज्योति, जो इसी इलाके की रहने वाली है, इस खाली प्लॉट को देखकर इसके बारे में जब मालूमात हासिल की तो पता चला कि 4 साल से वरालक्ष्मी इस प्लॉट को देखने नहीं आई है। ज्योति ने दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर शिकायत कुनिंदा का झूठा मौत का सदाकतनामा तैयार करवाया। इसके जरिए खुद को शिकायत कुनिंदा का कानूनी वारिस करार देते हुए पी ज्योति ने इस प्लॉट को अपनी बेटी के नाम कर दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने आज पुराने शहर का अचानक दौरा किया। उन्होंने मादनापेट, संतोष नगर और भवानी नगर पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हुए वहां के रिकॉर्ड्स वगैरह का जायजा लिया और ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन की नई ज़ेर तामीर इमारत का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो हर जुम्मे को कमिश्नर पुलिस की पुरानी हवेली के दफ्तर में मौजूदगी की रिवायत को बरकरार रखने के लिए साउथ जोन का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से जराइम पर काबू पाने में ताउन की अपील की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नशा और अशिया के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम भी जारी है। पुलिस की कार्रवाई की वजह से नशीली अदविया का कारोबार करने वालों में खौफ की लहर पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरियों की जानिब से ताउन जारी है। उन्होंने ये तौक़्क़े ज़ाहिर की कि यह ताउन जारी रहेगा। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।